Hello students, today I shall be discussing one article written by Harsh Pant in The Hindu. It is primarily related to India-Maldives relations and how there seems to be a turnaround in Maldives' approach towards India, and India has shown the same. But before I go on for discussing this particular article, I just want to inform you all that on Thursday at evening 6 o'clock, there shall be a YouTube live as well as offline session on answer writing, mainly related to the upcoming mains 2024 on political science and international relations. So in case you have got any type of doubt related to answer writing, your marks are coming less, or how you can improve your marks, you can attend that session and you can ask all your doubts, and I would advise you to better attend the session offline, so that after the session we can also have one-to-one interaction. And for those who are not in Old Rajendra Nagar or Karol Bagh, you can attend it offline. And apart from that, from Monday, the PSIR Foundation program is also beginning. So I shall be asking you people that all those who want to have a better conceptual clarity alongside answer writing in a time-bound manner for UPSC 2025, you can think of joining the class. Okay. So now coming back to the article, 25th June, The Hindu, Harsh Pant. The title of the article is From China Tilt to Balancing Between Beijing and Delhi. So you see, let us first go to the background of India-Maldives relations. You see, when we are looking at Maldives, just look at its geographical position. This is Maldives, right? And somewhere here it is Lakshadweep, right? So when we are looking at Maldives, you see this is Strait of Hormuz, this is Bab el-Mandab, right? And this is your Red Sea, and this is your Suez Canal. So just look at the position. This is a critical sea route which is related to trade between Europe and Asia, because this here you have got Mediterranean Sea, and this area, the Persian Gulf, this is the energy center of the world, right? So you have got one route connecting Europe and another is related to energy. Both of these come and somehow it has to cross this area, or it can directly come to India. Okay. So, and here you have got Malacca, and after crossing Malacca you have got 3 to 4 giant economies in the form of Japan. In the form of Japan, you have got China, then you have also got Taiwan, right? And then among all these ASEAN nations. So from trade to come from both these areas and somehow reach here, Maldives becomes very critical. So that is why if you want to ensure security in this Indian Ocean region, if you want to ensure that there is no piracy, Maldives is very much critical, mainly from a geostrategic point of view. If we look at China, China has got its base in Pakistan. China has got a base in here, somewhere here around Djibouti. So naturally, China would want to have a foothold or a strong influence along Maldives if it wants to have a very comfortable operation in the Indian Ocean region, and that is why it is trying to gain ports in Bangladesh as well. Okay, then you have got port in Myanmar. So because of all these factors, China also wants to have a say, because China knows that in the Pacific,
it cannot have a free reign because it has got Japan, it has got USA, it will face a very stiff resistance. On the other hand, in the South Asia, China has got some very good friends in the form of, you have got Pakistan, then you have got Sri Lanka, then you have got Bangladesh, you have got Maldives. So because of all this, China knows that this is a far more comfortable area, and militarily also India is not at par with China. And in case of conflict tomorrow between India and China, you know that for energy purpose, China is again dependent on this. So when you are looking at China creating a Belt and Road Initiative, that was the purpose, that through Belt and through China-Pakistan Economic Corridor, the energy resources can come to China, and somehow it will be able to avoid this Malacca dilemma. इसी कारण क्या है कि चाइना अब इस साइड से भी कुछ रूट्स ढूंढ रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक क्राक है इस्थमस, उसको क्राक कैनाल बनाने के लिए वो थाईलैंड से बात कर रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे कंबोडिया में भी उसका वो एक अपना बेस बना रहा है, सो एज टू हैव अ मच स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस. एक तो साउथ चाइना सी का अपना इंपॉर्टेंस है, बट साइमल्टेनियसली सो दैट कि इधर से उसका जो भी ट्रेड हो रहा है उसके साथ कोई खासा दिक्कत ना पड़े. सो दैट इज वाई Maldives is very critical to China's calculation, China's geopolitical ambitions in this whole of Indian Ocean region. Simultaneously, since this is Indian Ocean region, and naturally India looks at Indian Ocean region as its own backyard, इसलिए इंडिया के लिए भी ये पूरा रीजन जरूरी है. सो इसीलिए इंडिया और चाइना का जो जियोपॉलिटिकल प्ले है इन द इंडियन ओशन, मालदीव्स बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है. नेचुरली श्रीलंका और बाकी सारे देश भी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, बट सिंस टॉपिक टुडे इज मालदीव्स, तो मालदीव्स के साथ क्या हुआ ना, और इससे पहले मालदीव्स का इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा था. 1988 में कुछ प्लॉटेड टेररिस्ट थे, यही तमिलिलम, वो श्रीलंका से उठ करके यहां पहुंचे थे, एंड दे हैड ट्राइड टू गो फॉर अ कू एंड टेक कंट्रोल. तो उस समय इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन कैक्टस, और वहां के जो प्रेसिडेंट थे उनको बचा करके लाया था, और अल्टीमेटली दैट कुड बी फॉइल्ड, एंड हिज नेम वाज मौमून गयूम. तो ये जो आप गयूम देख रहे हो ना, दिस गयूम फैमिली इज अ वेरी पॉलिटिकली वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिली इन मालदीव्स. और बाद में जो आप अब्दुल्ला यामीन को देख रहे हो, वो भी ही इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर फैमिली. सो 1988 में हमने बचाया था. गोइंग फॉरवर्ड क्या होता है कि 2004 के अराउंड देयर वाज अ सिविल अनरेस्ट, और 2008 में आता है नया रेजिम जो मोहम्मद नशीद, ही बिकेम द प्रेसिडेंट, और अभी पिछले टेन्योर में ही वाज द स्पीकर ऑफ द हाउस, एंड ही इज वेरी मच प्रो इंडिया. इसके बाद कौन है नशीद के बाद? अब अरे ओ सॉरी, नशीद के बाद है अब्दुल्ला यामीन. अब्दुल्ला यामीन के बाद कौन है? यामीन रहे 2013 से 18 तक. उसके बाद सोलिह आए जो 18 से 23 तक रहे, और अभी हैं मोइजो जो कि 23 में आए. तो देखो ट्रेडिशनली क्या रहा है कि मालदीव्स की फॉरेन पॉलिसी हैज बीन इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, बिकॉज मालदीव्स नोज दैट इट इज अ वेरी स्मॉल नेशन. Naturally, it has got huge dependency on India. India is its closest and biggest neighbor. So that is why Maldives had a India first policy. लेकिन जब सोली और सोली से पहले जब यामीन गवर्नमेंट थी, यामीन गवर्नमेंट इट ट्राइड टू गो क्लोजर टू चाइना, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था करप्शन का. एंड एट दैट टाइम चाइना के साथ इन्होंने
ओवरनाइट एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया अल्टीमेटली, जिसके कारण कि मालदीव्स हैड टू सफर एंड इट ट्राई टू गेट क्लोजर टू चाइना, क्योंकि चाइना भी उस समय बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू इट वाज कंटिन्यूसली गिविंग लोन्स, सो यामीन आल्सो थॉट दैट। एंड उस समय मालदीव्स का सिचुएशन ऐसा था ना कि लोन्स had been taken by the private entities in Maldives from China, but उन प्राइवेट एंटिटीज को जो लोन था ना, उस लोन के लिए पे किसने किया था? उस लोन की गारंटी का गारंटर वाज द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एंटिटीज। उसके बाद फिर देन केम सोली एंड ही रीअफर्म्ड द इंडिया फर्स्ट पॉलिसी और रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए। $500 मिलियन का इंडिया ने एक ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया। उसके बाद फिर अभी आए हैं मुइजू, and Muizu since coming he openly declared, he said that it will not be India first, rather it will be Maldives first foreign policy, which means he shall be balancing his relation with other, he shall be balancing his relations so as to consider, give priority to the Maldivian interest। और इसके पहले क्या था, जो इससे पहले जो सोलिह गवर्नमेंट थी, since it tried to improve relation with India, so they had launched a campaign that is India Out campaign। so उसी India Out campaign के बेसिस पर एंड दिस सोली गवर्नमेंट उसने इसे मना करवा दिया था, उसने इसे बैन करवा दिया था उसी के। और फर्दर अदर क्या किया, आते ही यू मस्ट हैव सीन इन द न्यूज कि इंडिया के जो मिलिट्री पर्सनल हैं, जो वहां पे डॉर्नियर और चॉपर को जो ऑपरेट करते हैं, दे हैव टू बी सेंट बैक, दे हैव बीन सेंट बैक एंड उनकी जगह नॉन मिलिट्री और सिविलियन पर्सनल दे हैव बीन डिप्लॉयड। नेक्स्ट, ट्रेडिशनली द ट्रेडिशन वाज दैट Maldivian president will have its first visit to India, but his first visit was to Turkey, then he even went to China but not to India। उसके अलावा you saw what happened when Prime Minister Modi he had gone to Lakshadweep, and then after coming back from China, Mohammad Muizu he had said, he had actually referred to India as a bully। So all this showed that relations, it has declined, it has gone down। And you see traditionally क्या होता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना छोटा देश इंडिया को आंख दिखा रहा है, इतना छोटा देश इंडिया को आंख दिखा रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, वाई इंडिया इज नॉट रिस्पॉन्डिंग स्ट्रांगली। सपोज करो हम स्ट्रांग रिस्पॉन्ड करेंगे तो क्या होगा, दैट पर्टिकुलर नेशन और द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन, इट विल गो इवन क्लोजर टू चाइना। So just for the sake of it कि you can't say anything wrong to me, हम अपना नुकसान क्यों करें, क्योंकि अगर चाइना के क्लोज जाता है and it gains some strategic ports, China gains some strategic areas in a nation, in a geography so closer to us, will it be beneficial or will it be very costly for us? नतीजा है बहुत कॉस्टली होगा। So that is why हमेशा ठीक है, कमजोर अगर है तो जस्ट कीप देम इन गुड ह्यूमर, क्योंकि उनके नीड्स बहुत ज्यादा होते नहीं है। तो ये सारे के सारे इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए थे विच शोड दैट मालदीव्स जो है वो इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं, एंटी इंडिया पॉलिटिक्स वो चल रहा है विद इन मालदीव्स। ओके, और इसके पीछे का फंडा क्या था सारे का सारा, व्हेन यू आर लुकिंग एट इंडिया आउट और मालदीव्स फर्स्ट, फिर है सेंडिंग मिलिट्री बैक। पर्पस क्या था, पर्पस वाज टू बूस्ट अगेन द नेशनलिस्टिक एंड रिलीजियस सेंटिमेंट, क्योंकि मालदीव्स इज प्राइमरली अ इस्लामिक नेशन, इट इज अ मुस्लिम नेशन, तो दैट मुस्लिम वर्सेज हिंदू का डिवाइड। एंड देन इफ वी आर गेटिंग क्लोजर टू इंडिया, देन मालदीव्स नेशनल आइडेंटिटी इट इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड, हमारी सोवरेनिटी नहीं रहेगी, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सोवरेनिटी। आप यही खेल देखोगे जो मालदीव्स में चला, नेपाल में भी वही चला था, देन इवन इन श्रीलंका द सेम थिंग वाज देयर, इवन इन केस ऑफ पाकिस्तान, नवाज शरीफ से जब पीएम मोदी मिलने गए थे तो वहां पे इमरान खान का क्या था, मोदी का जो यार है गद्दार है। सो बड़ा नेशन होने के कारण दिस इज द चैलेंज दैट इंडिया फेसेस।
क्योंकि क्या है कि रीजन के सारे नेशंस जो हैं, नेशन स्टेट्स हैं, उनकी आइडेंटिटी के साथ इंडिया की आइडेंटिटी ओवरलैप करती है। आई मीन इंडिया एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी की। लुक एट बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड श्रीलंका, नेपाल एंड बिहार एंड यूपी। सो दे ऑलवेज हैव अ फियर कि इफ वी do not assert our independent identity, perhaps we might get subsumed into this larger Indian identity. So इसलिए वहां ने ऊपर से क्या है, ये सारे के सारे देश भी तो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस हैं. दे डू नॉट हैव दैट एंशियंट 200-400 years old independent existence. So these are the factors why these nations go, and apart from that क्या है, नेशनलिज्म इज समथिंग जिससे कि आप किसी भी चीज को काउंटर कर सकते हो, किसी को भी डिस्क्रेडिट कर सकते हो. सो दैट वो अगला फैक्टर बन जाता है जिसके कारण कि पॉलिटिकली लोगों को मोबिलाइज करने के लिए नेशनलिज्म एज अ सेंटिमेंट इज यूज्ड. और यहाँ पे रिलीजियस सेंटिमेंट पर्पस क्या है, वोट बैंक को बढ़ाने का. और जो अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए, मोइजू गवर्नमेंट, द सेम पार्टी, इट हैज गॉट अ बम्पर मेजॉरिटी. So perhaps that was somehow successful. साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है, he said that remove to dependence from India and diversify the relationship with Japan, Saudi Arabia, Turkey, UAE, UK, US. So ये अगला फैक्टर था initiative of Moizu government. So that is why you will see his visits to the Turkey, to China, all these areas. सो दैट कि इंडिया के ऊपर से डिपेंडेंस को हटाना है. क्योंकि यू सी, वंस ही सेड दैट इंडिया आउट कैंपेन एंड Maldives is not such a big economy that it can be self-sufficient. It does need partners. Closest partner is India. So it goes back to India, then naturally its vote bank will get hampered. Opposition will take up the issue. So that is why it tried to diversify. लेकिन डाइवर्सिफाई का देखो नुकसान ही पड़ गया. क्या हुआ, ये मानते थे चाइना के साथ ज्यादा क्लोज टाइज, चाइना के पास पैसे ज्यादा हैं, सो प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग मिलेगी, एंड इट इज मोर प्रो, चाइना इज अ मोर प्रोफिशिएंट पार्टनर कंपेयर टू इंडिया, बिकॉज इंडिया इटसेल्फ हैज गॉट डेवलपमेंटल नीड्स. सो इंडिया उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बट चाइना थ्रू इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स, इट हैज invested more than $60-70 billion in Pakistan. It is investing in other geographies. So Maldives thought कि उसके थ्रू चाइना भी इन्वेस्ट करेगा. लेकिन कि चाइना का स्टेटस क्या है, और वो दिक्कत आ गई यहाँ. क्या है, सबसे पहले मालदीव्स का खुद का इकोनॉमिक चैलेंज. एक तो इसका डेट टू जीडीपी रेशियो ने 110% है. मतलब आप खुद से अपना डेट हैंडल करना आपके लिए. और डेट के केस में क्या है ना, कि डेट तो डेट है, लेकिन इसके ऊपर का जो लोन है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है. एंड दैट इज व्हाई व्हेन श्रीलंका वेंट इनटू इकोनॉमिक क्राइसिस, यू सॉ कि ठीक है वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहा था, डेट सर्विसिंग की बात कर रहा था. आई होप डेट सर्विसिंग, डेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये सब आपको पता होगा इकोनॉमिक टर्म्स में या IR के टर्म्स में, क्योंकि अभी उतना ज्यादा एक्सप्लेन करना दैट विल टेक टू मच टाइम. देखो, फॉरेक्स है जस्ट $622 million, लेकिन जो डेट सर्विस मतलब कि इसको जो पे करना है साल के लिए, क्योंकि जो सारे डेट्स होते हैं ना वो 10 साल, 20 साल, 25 साल के लिए होते हैं, तो उसका एक अमाउंट, जैसे EMI आप क्या कहते हो, EMI इज नथिंग बट डेट सर्विसिंग. तो देखो 2024-2025 में $512 million, लेकिन 2026 में $1 billion इट हैज टू पे बैक इन द फॉर्म ऑफ डेट सर्विसिंग. लेकिन इसके पास क्या है, फॉरेक्स रिजर्व तो उतना है नहीं. उसके ऊपर से क्या दिक्कत है, इसकी इकोनॉमी मेनली किस चीज पर डिपेंडेंट है, टूरिज्म पर. बट यू सॉ इन केस ऑफ टूरिज्म, इंडिया ने जाना बहुत कम कर दिया है. सो दैट इज व्हाई दे आल्सो ट्राइड कि ठीक है, गोइंग फॉर कैंपेन्स एंड ऑल, सो एज टू अट्रैक्ट इंडियन टूरिस्ट्स. उसके आगे क्या हुआ, इंपोर्ट डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है. बिकॉज अब देखो मालदीव्स कुछ नहीं है, कटॉल तो है, बहुत ज्यादा खेती हो नहीं सकती, मछली है, तो मछली एक्सपोर्ट आप कर सकते हो. चाइना को आप कितना मछली एक्सपोर्ट कर लोगे. ऊपर से क्या हुआ है, जो चाइना के साथ FTA साइन करने के कारण इट्स इकोनॉमी इज सफरिंग, बिकॉज चाइना इज एक्सपोर्टिंग एवरीथिंग एंड इंपोर्टिंग वेरी लिटिल इन द फॉर्म ऑफ फिशेस एंड अदर मरीन
प्रोडक्ट्स। ठीक है, और आपने देख रखा है टूरिज्म ऑलरेडी इसका मतलब कि बहुत ही स्टीपली डिक्लाइन भी कर चुका है। इनफैक्ट जो मकान बनाने के लिए जो सैंड वगैरह होता है ना, वो सब भी से इंपोर्ट करना पड़ता है इनफैक्ट फ्रॉम इंडिया, और अभी रिसेंटली इंडिया ने वो कोटा बढ़ाया है। ओके, एंड चाइना ने क्या कहा, चाइना को कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का था, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स दे हैव गॉन बस्ट। चाइना को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है डोमेस्टिकली। चाइना इटसेल्फ इज इन क्राइसिस, इट्स इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, देन इट्स आईटी सेक्टर जो ये क्रैक डाउन किया, देन इट्स रियल एस्टेट सेक्टर, इसका जो प्रोविंसेस हैं दे आर हेवली इंडेटेड, दे आर हेवली बर्डन्ड। तो उसके कारण व्हाट चाइना सेड, चाइना इज नॉट वेरी मच कंफर्टेबल गिविंग आउट सम न्यू लोन्स। और ऑलरेडी चाइना जो है ना $1.5 बिलियन का लोन दे चुका है, एंड चाइना इज नॉट कंफर्टेबल इन ऑफरिंग न्यू लोन्स। अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना इज गोइंग द इंडियन वे कि वी विल गिव यू ग्रांट, उसके अलावा क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग, बिकॉज चाइना ऑल्सो नोज कि अगर ये सब काम करोगे तो विजिबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी और पैसे भी कम लगेंगे। ओके, एंड रिसेंटली इन जनवरी 2024 मोइजू ही हैड गॉन टू चाइना, तो वहां पे एग्रीमेंट्स भी कुछ साइन हुए थे। एक तो सबसे पहले था डिफेंस पैक्ट विथ चाइना, देन चाइना का जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, दे हैव अग्रीड दैट दे विल एक्सप्लोर दैट मॉलडीव्स साइंस द ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। इसका आप ये देख लेना, चाइना का स्पेसिफिक इनिशिएटिव है। मेनली इट इज रिलेटेड टू, इट ट्राइज टू अट्रैक्ट दोज कंट्रीज जो कि परेशान है बिकॉज ऑफ यूएस इंटरफियरेंस। ओके, एंड देन चाइना मॉलडीव्स कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एंड कोऑपरेटिव पार्टनरशिप, दिस वाज अनदर एग्रीमेंट दैट वाज साइंड। एफटीए से इनका मन नहीं भरा था, तो दिस वाज अनदर एग्रीमेंट दे हैड साइंड। ठीक है, सो अल्टीमेटली मोइजू वांटेड टू गेट क्लोजर टू चाइना, लेकिन वो काम बना नहीं। देन मोइजू लुक टुवर्ड्स इंडिया बिकॉज इंडिया हैज शोन दैट इन केस व्हेन श्रीलंका वाज इन इकोनॉमिक क्राइसिस, इंडिया वाज दैट नेशन जिसने की लगातार हेल्प किया, राइट। सो मोइजू थॉट दैट इंडिया इज फार मोर अकोमोडेटिव। तो और इंडिया ने रिसेंटली इट हैज टेकन सम इनिशिएटिव्स, जो डेवलपमेंट असिस्टेंस पहले 400 करोड़ था उसे 50% से बढ़ा करके 600 करोड़ कर दिया गया है। देन एक्सपोर्ट कोटा भी बढ़ाया गया है फूड पर 5% का, और कंस्ट्रक्शन आइटम ये जो रिवर सैंड वगैरह देख रहे हो ना, सब इसी में 25% का। उसके अलावा मॉलडीव्स ने इंडिया और श्रीलंका दोनों से बात भी की है बिकॉज इट डज नॉट हैव मच ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स। टूरिज्म ऑलरेडी इसका बहुत अच्छा नहीं कर रहा है कि पेइंग देम बैक इन डोमेस्टिक करेंसी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी मॉलडीव्स के फॉरेन मिनिस्टर ही वाज देयर, और वो हाई लेवल विजिट था, एंड ही सेड कि एक कोई $50 मिलियन का इंडियन बॉन्ड्स जो था उसे भी फर्दर ये कर दिया गया है। सो व्हेन यू आर लुकिंग एट इट, और उसी समय ये हुआ था, उसी समय अग्री हुआ था दैट मोइजू विल बी कमिंग टू एट द swearing in ceremony of the new Indian government. So he is coming to India. That was an indication that there is a thaw in relationship and Maldives is actually looking towards India. But at the same time, Maldives has not taken significant steps to move itself away from China. So perhaps what Maldives will try to do, that it will try to balance its relations with India as well as China, so that it can get the best of both worlds and it will be in a better negotiating position. Okay, so और ये नीचे मैप जो है, मैप का that we have already discussed. So that is what Harsh Pant has explained, that how there is a reorientation within Maldives to get closer or to mend relations with China. However, he has again explained that this does not mean Maldives is getting away from China. Okay, so उसके अलावा अब वो जो स्पाई शिप की डॉकिंग थी, उसके अलावा वो जो मरीन सर्वे वगैरह था, वो सब भी उसने कैंसिल कर दिया था कि हम अपने खुद की कैपेसिटी डेवलप करेंगे। सो परहैप्स नाउ इंडियन गवर्नमेंट विल एंगेज कि ठीक है, व्हाट एवर यू हैड कैंसल्ड नाउ स्टार्ट इट बैक।
Okay, so going forward, if you talk about suggestion, then you can always talk about creative diplomacy. India going for developing assistance, increasing economic interdependencies, connectivities, so as to increase its neighbors stake in Indian economy, as well as creating mutually beneficial dependencies, so as to provide them alternative from China. Okay, so with that you can always conclude. Okay, and this again I am saying, this note, this will be available in the on the Telegram group, and whatever I have discussed, I have suggested. If you have got any doubt, you can always ask that question in the comment. Okay, so that's all for today's discussion. Thank you very much.